हम मैले तुम उजल करते, हम निर्गुण तू दाता। हम मूर्ख तुम चतुर सियाणे, तू सर्व कला का ज्ञाता। माधो हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंडन। नीको ठाकुर देशा, जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। जतन बहुत मैं कर रहे हो, मिट्यो ना मन को मान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो भगवान। दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो भगवान। परम सम्मान योग सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सालाना गुरमत समागम दे दूजे दिन दी आप जी हाजरी भर रहे हो। अमृत वेले गुरमत नाम अभ्यास नाम सिमरन सत संगत रूप विच होया। उस तो बाद खुले पंडाल विच दीवान सजाए गए ने। आप सब नूं पता है कि इन्हां दीवाना दा मकसद केवल ते केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी सतगुरां दी दित्ती होई सानू जो गुरमत दे अंग ने, गुरबाणी कीर्तन, गुरबाणी कथा, गुरबाणी वखियान, ढाडी कला राही गुरु इतिहास और कविता राही कवि सज्जन अपने मन दे वलवलियां सहित सतगुरु दियां सिफतां करदे ने। इसे संबंध विच ही खुणे तुसीं पहला ज्ञानी भगवान सिंह जी नूं सरवण कीता, क्योंकि कई सज्जन सिक्खी च एडे वड्डे सेवादार ने, वो साडी तरह पोस्टरां च टैलीविजन च सोशल मीडिया च नहीं दिसणगे। ज्ञानी भगवान सिंह बहुत वड्डे विद्वान ने। जेड़े ज्ञानी गुरमिंदर सिंह हरमंदर साहब ग्रंथी साहब ने,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਮਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਪਰ ਆਪ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਅਰਥ ਇੰਨੇ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਚਮਕ ਦਮਕ ਵਾਲਾ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ। ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਰਾਗੀ ਨੇ, ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਲਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਵਿਤਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਆਓ ਕੁਛ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਕਿ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ੋ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਜ਼ੂਰੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਸੀ, ਖਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਤੇਰੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੈਤ ਸਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਖਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ, ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਨੇ ਖਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਤ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਰਜੂ ਰਾਖ ਲਿਹੋ ਪਤ ਮੇਰੀ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰ। ਕੀ ਪਤ ਰੱਖੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਹਿਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੌਤ, ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਸ ਕਹਿੰਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਖ ਲਖਣ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਭਇਓ ਉਰ ਅੰਤਰ, ਸ਼ਰਨ ਗਈ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਤੇਰੀ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਦਾ, ਜਮ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਜੀਏ, ਜੋ ਅਨਹੋਨੀ ਹੋਏ ਇਹ ਮਾਰਗ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮ ਗਇਓ ਰਾਵਣ ਗਇਓ, ਜਾਂ ਕੋ ਬਹੁ ਪਰਿਵਾਰ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਥਿਰ ਕੱਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ।
जेड़े सतगुरु ये कह रहे जो उपजो सो बिन सिखै, परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़, सगल जंजाल। उन्हां दे अंदर किते जम दा त्रास है। वेखो संबोधन अपने आप नूं कीता। गुरु तेग बहादुर साहब दी बाणी, क्योंकि मैं विषय दे विच रह के गल करांगा। कल ये विचार शुरू कीती सी, सब तो ज्यादा जे मन नूं किसे ने झंझूड़िया ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने। एवें सब तुसीं उत्ती आ जाओ, नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕੌਣ ਕੁਮਤ ਤੈ ਲੀਨੀ, हे मेरे मना तू केड़ी भैड़ी कुमत पिछे पै गया। अक्सर याद रखियो, सिमरन वाला हिरदा कदी किसे ते उंगल चुक के नहीं कहेगा तेरे च आ औगण ने। वो अपने औगण तो गल शुरू करेगा ते औगणा वाला वेख के अपने आप ही औगण त्याग देंदा। मैं एक बार अर्ज कीती सी, ये दोहरान लगा, सेवा पंथी महापुरुषों का एक ग्रंथ है संत रतनमाल। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सारी सेवा पंथियां दे दिते हुए ने जी वेरवे। उस विच एक साधु दे कोल सेवादार रहिंदा डेरे च, क्योंकि डेरा लफ्ज अज असी बड़ा धुंधला जिहा कर दिता है। ते मैं कई बारी बेनती करना, असी माइक ते बोलण वाले गल्लां बड़ियां वड्डियां कर जाने आ। जिन्नी सेवा डेरे वाले करदे पिया चेते रखियो, असी पल्लिओ दुखी भी खर्चण नूं तैयार नहीं हुंदे। तुसीं देखो जिन्ने लंगर ने, जिन्ना अज कुल चल रहा, इह कोई शक नहीं। रब दी बनाई हुई रचना विच दे तुसीं कहो भी सारी दुनिया चंगी हो जाएगी, ये वर्का पाड़ दिओ ओदी रचना रुक जाएगी, क्योंकि संसार चलदा ही चाहे दे चंगियाई ते बुरियाई इकट्ठी रहेगी। ये चलदा थोड़ा है जी। हुण असीं इह तां कहने आ, हुणे भाई साहब ने औरंगजेब दा जिक्र कीता, गुरु तेग बहादुर साहब ने उहदे सिर ते ठीकरा भन्निया, पर जे ते देखो जे सिर ही ना हुंदा ते ठीकरा भन्नदे किथे। इहदा मतलब जे वजीर खाना हुंदा साहिबजादियां नूं ठीक से अपनी उम्र भोग के चले जाते। इस संसार विच मैं एक बारी कहा भी चंगे बनना चाहिए, बुराई तो बचना चाहिए। जे ये कल्पी जो रोई जो खाए बुराई, ये रब दी बनाई रचना है। याद रखियो, पहला भी सी, अज भी है ते अगां भी रहनी। हुण जिहड़े असीं सारे प्रमाण देने, ये 500 साल हो चुके ने बाणी उचारण कीती। अज असीं सारे कहने राजे शी मुकदम कुत्ते। ये शब्द तो 500 साल 525 साल पहला बाबा जी ने उचारिया। एदा मतलब जेड़ी बुराई 500 साल पहला सी वो अज भी है, ताई तां शब्द उत्ते टुकदा पिया। सुनियो, ओदे मेरे कहण तो मुराद मैं ये नहीं कहंदा भी तुसी कहो भी बुराई सारी हट जाती है, नहीं। एक खेड है, जे होर दृष्टि नाल देखो, जदों पहलवान खेड शुरू हो जाती है ना, कोई भी खेड है, क्रिकेट है, हाकी है, बास्केटबॉल, कबड्डी, कोई भी, उंज तुसी ग्राउंड च जिवें मर्जी तुरे फिरो, सज्जे तुरो खब्बे पुरो, पर जदों गेम शुरू हो जाएगी उदों नंबर, उदों हारना जितना ते फाउल उदों ही होवेगा। याद रखियो, जिदन दी रब ने सृष्टि रची है उदन दी पाप पुन दा फाउल ते नंबर ने। जिदन सृष्टि समेटेगी ना इत्थे पुन रहना ना कोई पाप रहना। जब आकार कश ना दृष्टिता, हुण जदों आकार ही नहीं सी उदों किथे पुन ते किथे पाप सी। पर मैं आप नूं ये नहीं कह रहा भी सानू गुनाह करने चाहिए ने, पर मेरी एक बेनती, हुण सतगुरु कह रहे ने अपने आप नूं संबोधन करके, यही फर्क है। जदों बंदे कोल बोधक ज्ञान दी खनेरी आउंदी है, क्षमा करियो सारे नहीं ज्ञानी हुंदे, उदों अक्सर वो लोकां ते चिक्कड़ सट्टन लग पैंदा है। जदों नाम दी खनेरी आउंदी उदों चिक्कड़ सारा अपने आप नूं समझदा है, दुनिया नूं चंगा कहन लग पैंदा। बाबा जी ने कहा, तो दीवाना जानिए जां साहिब धरे प्यार, मंदा जाने आपको अवर भला संसार। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोहे, परनवत नानक तारे सोए। कबीर सब ते खम बुरे। कमाल दी गल, हालांकि उन्हां पखंड उत्ते चोट मारी, पर सिमरन वाला हिरदा सुरत नूं कदी मैलिया नहीं होण दिंदा। याद रखियो,
कदी मैलिया नहीं होण दिंदा। असीं सारे कहने, अज भी ज्ञानी जी कह रहे सन, तत्ती तवी ते बैठ के क्या कि बिसर गई सब तात पर आई, जब ते साध संगत में पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना। ओदा कारण सी कि गुरु तत्ती तवी ते बैठ के भी अपनी सुरत नूं कदी डिगन नहीं देंदा, अपने गुण नूं नहीं कदी त्यागदा हुंदा। मैं फिर बेनती करा कि सतगुरु जी दा ये बचन गुरु तेग बहादुर साहब जी दा मन रहे, कौन कुमत है लीनी, केड़ी भैड़ी मत पिछे पै गया, कुमत पिछे। पर दारा समझने पराई इस्तरी, निंदिया रस रचियो, तू निंदिया दे रस विच मगन है, राम भगत नह किन्नी तू परमात्मा दी भगती नहीं कीती। थोड़ा जा टेक के मेरी बेनती सुनियो, जिहड़ी साडी सिख रहत मर्यादा है ना, इहदे विच कुछ बेसिक गल्लां ने, पर रहत मर्यादा धुर की बाणी नहीं कि इहनूं चेंज नहीं किया जा सकता। एम ए साहब बैठे, मैं एक गल उठाई, क्योंकि कवि ते ढाडी ये गुरमत संगत दा बड़ा वड्डा अंग ने, पर मैनूं दुख लगा, मैं पूरी मर्यादा दा एक एक मद पढ़ी है, ना ढाडी दा किते जिक्र है ते ना कवि दा किते जिक्र है। हालांकि अकाल तख्त साहिब दे रोज सामने ढाडी दरबार सजदा। हुण ये जे कह दिओ नहीं जी जो लिख दिता है बस असीं धक्के नाल ही मनावांगे, मैं बेनती करांगा कि पंथ नूं सोचना चाहिए। तुसीं एम ए साहब पढ़ी होनी मर्यादा, इहदा मतलब एडा वड्डा अंग अकाल तख्त दे थड़े सामने ढाडी कला शुरू हुई है। कवियां दी शुरुआत आनंदपुर साहिब दी धरती तो ही, ते दोनों जेड़े ने शहादत तो बाद पैदा हुंदे। हालां काव रचना ते बाणी सारी कविता च है। हालांकि आपनूं पता ढाडी कला नाल संबंधित वारां दीयां पौड़ियां ने, ओहदा संबंध ही ढाडी कला नाल जेड़ियां पौड़ियां ने, पर इस कला नूं कच्ची बाणी कह के, क्योंकि मैनूं पता लगदा जदों लिखिया होवेगा हो सकदा है कईयां दे शब्द ऐसे हुण। खैर अपना ये विशा कोई मर्यादा दे मंथन दा नहीं, पर जेड़ी गल नहीं लिखी, क्योंकि सरदार अजमेर सिंह जी खेड़ा आए ने, एग्जैक्टिव मैंबर ने, मैनूं बहुत प्यार करदे आ, ये पहुंचे ने, ते जरूर मैं इस करके गल कीती। ये गल्लां सानूं ज़हन च रखणियां चाहीदियां। मैं आपनूं फिर बेनती करां, उस विच बज्र करैतां लिखियां, पर तन तमाकू कुट्ठा। हालांकि कई बारी कई सज्जन कहंदे जी मास बारे वेखो, मैं खांदा नहीं, पर मैं धक्के नाल किसे नूं कहांगा, क्योंकि जिहड़े पंथक मसले ने उन्हां दे फैसला मैं नहीं कर सकदा। ये मेरी कमजोरी, मैं नहीं खांदा, पर मैं किसी ते लागू अपना ना खाना नहीं कर सका। इनू ये ना समझो मैं बढ़ावा दे रहा, क्योंकि जदों तुसी बरीकी नाल पंथ नूं एक सूत्र च बनना है, ते तुहानूं ओ कुछ मनना पएगा जो कोई लिखिया होया। पर मैं बेनती करां कि देखो ये बज्र करैतां ने, तमाकू मास ये नशे सी सारे कहने आ, जा ये भारतां केसां दी बेअदबी, ये ने बाहर मुखी गल्लां। चंगी गल ये संगठन नूं कायम रखदियां करैक्टर नूं। अज मैं सोच रहा सा, जे कोई नशा करके कोई आ जाए, असीं कहांगे नहीं नहीं तू अंदर ना ही, तू शराब पीती है, तू आ खादा है, पर मैं सोचना गल गलत नहीं होना चाहिए। ते मना जिहड़ा तू हंकार दा नशा लैके गुरु कोल बैठा है प्रवान है, ये दिसदा कोई नहीं ना, ये नजर नहीं आ रहा। पलीत तां पलीत दूजे दा नजर आ रहा है, ये दिस नहीं रहा। एक हुंदा शरीरक तौर ते पतत होना, एक हुंदा शरीर बचिया रहे पर सुरत दे तौर ते पतत हो जाना। फुरना तां पतत कर ही गया ना। मैं तां ही कहा तुसी पाठ जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा करोगे, मर्यादा च नहीं लिखिया भी निंदिया नहीं करनी, पर पूरे गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया है जिन्ना बज्र करैत पराए तन दे कोल जाना है, उन्नी बज्र करैत किसे दी पिठ पिछे निंदिया कर। गुरबाणी मुताबिक के पाप उन्ना ही वड्डा है। हुण गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा पर दारा निंदिया रस रचियो, उथे रस शब्द दोनों लिए इकट्ठा रखे। रस की व्याख्या परदारा नाल भी होगी। मन रे कौन कुमत है लीनी, परदारा निंदिया रस रचियो, राम भगत ने कीनी। ये कहना मैं बज्र करे तो बचिया, पर निंदिया दा रस तां सारे लै रहे। दूजी गल तुसीं कदी पाठ देखो कि बचन आउंदा है, हजूर ने फरमाया, कहन लगे कि असल च पर तेरा रूप ना पेखै नेतर,
ये भी परदारा हो गया। उस तुक आउंदी है कर ना सुने काहू की निंदा। हुण ये जिन्ने शब्द ने तुसी पढ़ोगे कि जिथे पर तन आएगा उथे बहु गिनती च शब्द पर निंदिया भी आएगा। अंदर दी मलीनता दोनों दी इक्को जी। पर गुरु तेग बहादुर साहब ना तो परदारा ना पर निंदिया। ज्ञानी ज्ञान सिंह तां लिखदा है तवारी गुरु खालसा च, कहंदा है कि गुरु तेग बहादुर ते माता गुजरी जी दा तकरीबन 42-43 साल दा ब्रह्मचर्य है। उन्हें शब्द लिखे कल मैं क्या कि 45 साल दी उम्र गुरु तेग बहादुर सिंह जी ते 40-42 कहो माता गुजरी जी दी ते 45 साल दी उम्र विच हजूर दे घर पुत्र दा जन्म होया। विआह होया नूं 32-33 साल हो चुके। मैं फिर आपनूं बेनती करांगा कि उस चीज नूं जे असीं देखीए पर गुरु साहब अपने ते टिका रहे कि मन रे कौन कुमातै लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी। फिर शब्द कह रहे हैं मन की माहे रही नार भजो ना तीरथ सेवे चोटी काल गई। मन रे कहां भयो तै बौरा एनस औद घटै नहीं जाने भयो लोभ संघौरा। अपने आप नूं कह रहे हजूर कह रहे ने बाणी च बड़े शब्द ने जाग लेहो रे मना जाग लेहो कहां गाफल सोया जो तन उपजा संगी सो भी संग न खोआ। हुणे मैं शब्द पढ़िया गुरु तेग बहादुर कहंदे आ कि जतन बहुत मैं कर रहे हो। मैं क्या उत्तम पुरख में बड़े जतन कीते मिटियो ना मन को मान मेरे अंदर दा खंकार ही नहीं मरदा पे। जतन बहुत मैं कर रहे हो मिटियो ना मन को मान दुरमत स्यो नानक फद्यो राख लिहो भगवान। मैं जेड़ी कल तुक पढ़ी हरजू राख लिहो पत मेरी, सिर्फ एदे अर्थ करके कि खरी जी मेरी पत रख लो। ते मैं आप नूं कल भी बेनती कीती सी जिन्ना मर्जी बंदा अमीर होवे धनाड़ होवे सूझवान होवे परमात्मा पत रखे ते पत रहिंदी है। नहीं ते प्यारिओ बंदे दे अपने हथ विच बिल्कुल नहीं कि मैं अपनी पत बचा सका मेरी पत बच जाए। एक गल बड़ी स्पष्ट है जेड़ा बंदा जिंदगी च किसे दूजे दी पत ढकदा है ना, कल असीं यही कथा कर रहे सन परमात्मा ओदी पत हर हालत विच ढकदा। सवाल ही नहीं पैदा। हालांकि साडा सुभाग है। मैं एक तुहानूं साखी है गुरु नानक साहिब जी दे वेले दी बड़ी आश्चर्य जी साखी। ते भाई गुरदास साहब ने जदों सिख दा नाम लिखिया ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਵਖਾਣੀਐ ਚਲਤ ਅਚਰਜ ਲੁਬਤ ਗੁਰਦਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਕੀੜੇ ਦੀ ਗੋਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀੜ ਗੋਤ ਦਾ ਭਾਈ ਮੂਲਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਤਾ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਮੂਲਾ ਕੀੜ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ। अगली जी तुक लिखी इन्ना कि ना है ना मूला कीड़ वखाणी है चरज अचलत कहते ने ये जेड़े चलत ने ना चलत अचरज ये जेड़ी हरकत जाना ये चरित्र ने यदा जेड़ा करनी नाम है ना वो बंदे नूं हैरान करता भी इहो जिहा बंदा है। चलत अचरज अगे लुबत लुबत का अर्थ हुंदा है भी लुभाएमान रहिंदा चाहवान रहिंदा इच्छावान रहिंदा गुरदासी गुरु दे दासां दा दास बनना लोचदा है। ते पर जेड़े इहदे जीवन है वो जीवन बड़ा अनोखा अचरज है। जदों मेरे सामने तुक आई ते मैं भाई साहब जी दे तुक विचों फिर भाई मनी सिंह जी दी जिहड़ी कहा जांदा सिखां दी भगतमाल ओहदे च डिटेल दित्ती। ये भाई मूला गुरु नानक साहब दे कोल जांदा ते मैं आप नूं बेनती तां कर लगा रब पत रखदा जे किसे दे पर्दे ढकोगे तां। कल मैं क्या द्रौपदी ने हुणे जिक्र किया सिर्फ अदोक गिठा कपड़ा दिता दुर्भाषा ऋषि नूं नगन नूं पानी च खलोते नूं उन्हें इन्ना ही कहा सी धीए तू मेरी पत रखी रब तेरी जरूर रखेगा क्योंकि पुन जिहड़ा बीजा कदी व्यर्थ नहीं जाता। ये गुरु नानक साहब जी कोल आया इन्हें सतगुरु नूं पुछया महाराज लोग जुआ खेडदे आ शराब पींदे आ चंचलताई च
ते सतगुरु कहते ने तू बस इको काम करना है, किसे दे औगण नहीं देखने। पत ओही ढक सकदा जिहड़ा औगण नहीं देखदा, जिहड़ा औगण देखदा वो कदी पत नहीं ढक सकदा। तू पहला काम तू किसे दे औगण नहीं देखने। दूजा कहने तू गाली ना तेनू गाउणा आउंदा? कहंदा महाराज मैं राग जानना वा। हजूर कहंदे ने बड़ा सौखा काम है, तू सुर दे विच राग विच शब्द गाया कर, घर कीर्तन करया कर, औगण नहीं देखने। तीजा शब्द क्या? जदों तेरे कोल कोई सिख आवे तू अपने तन मन धन अनुसार ओदी रज के सेवा करनी। तीन गल्लां बस चेते रखी, औगण नहीं देखने, कीर्तन करना है ते सिखां दी सेवा करनी। उन्हें कहा जी 7 बचन। घर चला गया। मैं शायद पिछले साल बेनती की, बड़ी हैरानी जी वाली साखी। घर चला गया, इन्हें रात नू शाम नू कीर्तन करना, संगत इकट्ठी हो जानी। जदों भी कोई सिख आउणा ते उन्हें ओदी रज के दिलों सेवा करनी, घर टिकाणा, ओनू लंगर पानी देना। एक दिन एक बंदा आ गया, ओनू गुरबाणी बड़ी कंठ सी, पर है सी ओ ठग। कोई जरूरी नहीं, तुहानू एजेंसियां दे, हिंदुस्तान दियां एजेंसियां विच ओ बंदे मिलणगे जिहड़े तुहाडे तो कई गुणा शुद्ध बाणी पढ़दे होणगे, पर तारा उन्हां दियां किसे होर थां जुड़ियां होणीआं। पढ़ लैणगे पर रस नहीं बनेगा, क्योंकि कल्ले कहो जी मैं सुखमनी साहब काटना, जे गुरु दी कृपा नहीं अखर दोहराए जाणगे, रस तां बनदा जे ओदी मेहर भी नाल होवे। सत्ते बलवंड नू आसा दीवार नहीं सी भुल गई, पर संगत कीर्तन क्यों नहीं सी सुनदी? राग उन्हां दे कोल, इन्नियां बंदिशां उन्हां दे कोल, एडे कमाल दे रबाबी, पर सब कुछ कोल सी, कला कोल सी, गला कोल सी, शब्द ज़हन विच चेते सन, पर गुरु अर्जुन देव दा हाथ चुकिया गया। ओ जी कीर्तन करदा है, ओदे कोलों बंदा आ गया, उन्हें गुरबाणी जदों सुनाई, आवाज बड़ी सुरीली, पर भाई मूला कहंदा इहदे सुनना रस क्यों नहीं बनदा पिया। चलो उन्होंने घर रख लिया, रात सेवा कीती। ते उदों तुहानूं पता है अज भी साडे घरां च, हुण तां नहीं, पहलां बीबियां डब्बे च गहने पा देने, गड़वी च गहने सोना पा देना, ढक देना, पड़छत्तियां ते रख देना जां दब देंदे सन। वो बंदा सब कुछ देखी गया, वो ध्यान नाल नजर नाल देखी गया, ते उन्हें वेख लिया भी भाई मूले दी घर वाली ने गहने उतारे ते उन्हें पा के डब्बे च उत्ते रख दिते। इन्हें देख लिया, रात सुता, अद्धी रात नूं उठिया है सी वो ठग। ते उंज याद रखियो, जे कोई कहे ना जी नहीं आपां सुचेत रहना चाहिए, किवें ठग्या गया। मैं कई बारी सोचना, बाबे फरीद जैसा महापुर कहंदा मैं जानिया वडखंस है तां मैं कीता संग, इहदा मतलब भुलेखा उत्थे भी लग गया। भुलावड़े भुली भुल भुल पछोताणी, मैं जानिया वडखंस है तां मैं कीता संग, जे जाना बग बपड़ा तां जन्म ना भेड़ी। ये दो वारी आउंदा ना, जन्म ना दिंदी अंग। उन्हें रात नूं ओ जी डब्बा चुक लिया गहने वाला, दब्बे पैरी बाहर निकलिया। बाहर हवेली दा दरवाजे नूं ताला लगा सी, हुण जंदरे दी कुंजी कोई नहीं। ਇਹਦੇ पैरां दी आवाज सुनी, पर मूला चुप करके पिया रहा। ये फिर कोल चला गया, कहंदा भी दरवाजा खोल, मैनू कुंजी दे, मैं रमने जाना है। रमने जाना समझ गया ना जी, मैं हाजत करन जाना, मेरा पेट खराब है। वो कहंदा भी तू आया ते कोई गल नहीं, सर्दी इन्नी कित्थे जाएगा, तू वेड़े च हाजत कर दे, मैं हत्थां नाल बाहर सट आवांगा। उस बंदे दी सेवा देखो, मैं बाहर सट देंगा, नाले तू जे पेट खराब है ते कम कर, मैं पानी गर्म करना, तेरा हुणी इशनान करा देना। कहना नहीं नहीं मैं बाहर जाना, मैनू कुंजी दे। मूला उठ के कुंजी लैके जदों बूहा खोलन लगा, वो डब्बा जिहड़ा कच सी वलेटिया, चादर दी बुक्कल मारी, वो थल्ले डिग पिया। मैं तां कहा भी गल बड़ी होर तरह लगे भी, चल अचरज भी अचरज ही सखी ओदी कि लोग कहणगे मूर्ख सी, फड़ लैंदा ओनू, ओनू 2-4 ठोकदा, नाले लोग इकट्ठे करदा। वो डब्बा डिग्गिया, उन्हें डब्बा पकड़ा के क्या कहंदा, तेरा डब्बा डिग पिया।
पता हुण लग गया भी डब्बा मेरे घर वाली दे गहणियां नाल भरिया। उन्हें कुंडी खोली, जो चला गया। सवेरे घर वाली उठी ते कहंदी है मेरा डब्बा कित्थे वे गहणियां वाला, नाले वो सिख कित्थे गया जिहड़ा रात सुत्ता सी। वो कहंदा भागवान ने तू गूढ़ी नींद सौंगी सै, थकी सै, राती चोर आए वो डब्बा लैके चले गए, वो तां शर्म दा मारा सवेरे सवेरे चला गया, किते मेरे ते शक ना कर। मैं तां क्या भाई जी ने लिखिया कि मूला कीड़ वखानी है, चलत अचरज लभत गुरदासी। भाई साहब कहने ओदी साखी बड़ी हैरानी वाली है। उन्हें कहा भी वो सिख विचारा शर्म दा मारा तुर गया कि मेरे ते बलेम ना आ जाए, मेरे ते दोष ना आ जाए। कहंदा नाले छड़ परां, सिख दी सेवा दा फल बड़ा वड्डा ही, जिन्ने गहने तेरे ने मैं तेनू दुगने बनवा देने। गुरु नानक ने सानू कमी थोड़ा रहन दिती। मैं कई बारी सोचना साखी बिल्कुल अचरजिक है, ते मैं साखी तां लै ली भी गल बाणी दी छेती समझ पै जाएगी, कोई मैं गूढ़ी गल नहीं कीती। बंदा अंदर पचदा कोई नहीं, जे मेरे अंदर भी नहीं पचदा। बहुत मुश्किल, कदी भी बंदे दे अंदर दूजे दा औगन नहीं पचदा, वो उल्टी कर दिंदा उसे वेले। समझ गया ना, पचदा कोई नहीं। फोन कर करके सवेरी दसूगा, सुनी जे गल, तुहानू बड़े बंदे सवेरे सवेरे टक्कणगे, क्योंकि उन्हां दा हाजमा इन्ना कमजोर हुंदा, उन्हां नू किसे दा औगन नहीं पचदा। मैं कहना इह सिख दा अंदर किन्ना जबरदस्त ताकत वाला इहदा हाजमा, सक्की घर वाली नू भी दसदा नहीं की बनिया। ओहदे तो पर्दा पा लेना बड़ा मुश्किल लगदा है। उन्हें क्यों शर्म दा मारा चला गया, गहने बना दिते। भाई मूला फिर 6 महीनों बाद गुरु नानक साहिब कोल गया। साडा इतिहास कहंदा है कि गुरु नानक साहब ने मूले कीड़ नू आउंदियां देख लिया। मूला मत्था टेकन लगा, हजूर मंजी ते बैठे सन। अक्सर गुरु नानक साहब ऐसे मंजी ते बहिंदे हुंदे सन। चलो हुण जदों 6वें पातशाह फिर सिंघासन चलो चंदोवे, महाराज मंजी ते बैठे उठ खलोते, मूले नू पकड़ लिया ते अपने सीने नाल ला के, क्या मूलिया तू मेरे पर्दे ढके ने, गुरु तेरा लोक परलोक पर्दा ढकेगा। संगत बड़ी हैरान भी गुरु दा पर्दा की ढकना। साडे इतिहास विच लिखिया किरपा निधान बोले, किरपा निधान कहो सुन मूला। किरपा दे खजाने गुरु नानक साहब कहंदे ने, सिखा रिदा तोर सिखी अनुकूला। तेरा हिरदा जित सिखी टेक सकदी, तेनू मैं देखिया तेरा हिरदा सिखी वाला। किरपा निधान कहो सुन मूला, रिदा तोर सिखी अनुकूला। मम पर्दा तुम ढाक्यो बनाई। सुनियो इस गल नूं, मम पर्दा तुम ढाक्यो बनाई, तेरा ढाक है गुरु सदा ही। तू मेरा पर्दा ढके, तेरा गुरु सदा ही ढकेगा। उस पुछदे ने होया की? महाराज कहने सुना, भाई मूले ने सुनाया इस तरह आया संगत विच। गुरु साहब कहने तू रौला क्यों नहीं पाया? कहंदा बाबा तेरी बाणी पढ़दा सी, जदों तेरा नाम आउंदा सी बाणी च मेरा दिल करदा सी जे एदा पर्दा चुकिया गया ते शब्द दा पर्दा चुकिया जाएगा। मैं शब्द देखा। महाराज ने कहा तू मेरा ढकिया है, रब तेरा ढकेगा। याद रखियो एक अरदास विच आउंदा है जी, बिरद की पैज जदों पढ़ने ना, जहां जहां खालसा जी साहब तां तां रचिया रियायत। ये जिहड़ी सतर्क है ये असल च इतिहासकार कहंदे ने उदन शामिल कीती सी जिदन बच्चियां दे गले कट के वाहिगुरू शरीर ते गले दे खार बनाए सन मामा दे। उदन क्या सी गुरु गोबिंद सिंह जी इस खालसे दुध चुंग दे बच्चियां दी तू रखवाली करी। साडे इतिहासकार कहंदे ने ये तोक उदन विच शामिल कीती गई। पर देखो तुसीं एक पढ़दे हो, बिरद की पैज पंथ की जी देग तेग फतेह। बिरद की पैज की है? बिरद का मतलब की है? देखो गल बड़ी वड्डी है। दो शब्दां च बिरद की पैज, पैज दा अर्थ इज्जत है ना, ते बिरद दा अर्थ है सुभाव। एदा मतलब है परमात्मा तू बिरद दी पैज रखी, सुभाव दी पैज रखी, किते बिरद दी पत ना उड़ जाए। बिरद ना किते कोई त्यागदा, सुभाव ना कोई छड़ जाए। रब दा बिरद, गुरु दा बिरद ते सिख दा बिरद तिन्ना दा इको जिहा जे। फिर सुनियो, हरजू राख लियो पत मेरी,
रब दा बिरद है औगण को ना चितारदा, गल छेती लायक ओदा बिरद है। खमरी गणत ना गणियां काई, अपना बिरद पछाण। एडी वड्डी गल, कहंदे साडे औगण ना देख, तू अपना सुभाव देख, तू किवें पर्दे ढकना। हमनी गणत ना गणियां काई, अपना बिरद पछाण। ਜਾਂ आप पाठ कर दिओ, दीन दयाल दया निध दोखन देख तखै। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਪਰ ਦੇਤ ਨਾ ਹਾਰੇ, ਕਦੀ ਉਹ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਦਾਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਖਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦਾ ਬਿਰਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਬਦਲੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਉਣਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਮਰ ਜਾਣਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਰਮ ਕਰਤੂਤ। ਕੱਲ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਕਰ ਨਰਕੂ ਨਾ ਪਾਮੂ ਠੌਰ, ਤੁਮਰੋ ਬਿਰਦ ਕਰ ਆਸਰੋ ਸਮਾਰਕੂ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਾ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਪਾਪ ਇੰਨੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਵੱਲ ਦੇਖੀ, ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਢੱਕਦਾ। परमात्मा दा बिरद है पर्दा टकना। गुरु भी ढकदा है जी। निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी। वेखो किड्डी वाडी गल, ये थोड़ा क्या भगत दा पर्दा ढक लिया, ये ठीक है भगतां दा भी क्या, पर इत्थे निर्गुण राख लिया संतन का सदका, सतगुर ढाक लिया मोहे पापी। पर्दा बिरद की पैज रब जी दी है, बिरद की पैज गुरु दी है, ते तीसरी गल बिरद दी पैज सिख दी है। मैं एक उदाहरण सिर्फ दे के समाप्ति करनी है, ते मैं बेनती करांगा तकरीबन सवा घंटा एमए साहब आए आ, क्योंकि इन्होंने पता है भी साडे जिहड़े स्रोते आ, ते मैनूं इह गल दी बड़ी खुशी है भी ये जिहड़ा तंबू है ना, आम मैं कहना हुन्ना बाहर जाके रागी प्रचारकां नूं भी साडियां बंदियां दियां पग्गां खब्बियां टेढ़ियां मेढ़ियां दा देखियो, लक दियां परने मोढे ते ना देखियो, इदू वड्डे इंटरव्यू लैण वाले है ही कोई नहीं। खेड़ा साहब इत्थे कथावाचक आ जाए, कीर्तनी आ जाए, ढाडिया जी हर बंदे नूं सद्दिया। ये तकरीबन दो बंदे ने, एक एमए साहब ते एक पमद्दी, जिन्हां नूं कदी भी साडी संगत ने नहीं कहा जी क्यों बुलाया। नहीं तो एक बारी एक सताडी सिंह बुलाए सन जी, ते इत्थे ओ भाई बलार सिंह पूरा हो गया मराणिया वीर, वो इत्थे ही बैठा ते खब्बे सज्जे वेखे, ते मैनू कहंदा भी आंदा इनू बुक किने कीता, मैं डांग फेरनी ओनू, क्योंकि इहदा मतलब यह हुंदा भी असीं बैठे हां कोई सुनन वास्ते। ते असीं इसे करके जी खिमा करो जी सिंह साहिबां दा सन्मान करने, पर असीं यतन करने। मैनू कह दिंदे थल्ले खेड़ा साहब भी असीं बाणी सुनन आए, असीं लीडर सुन नहीं आए, सानू बाणी सुनाओ। इसे करके साडी स्टेज ते अज सानी साहब कह रहे सन पिछे 5-10 बंदे बिठाओ, वो भी सुन रहे होने, लाइव चल रहे। मैं कहा इत्थे उत्ते कोई नहीं बहिंदा, सारे थल्ले बहन वाले हुंदे। मैं एक बेनती करांगा कि देखो, मैं फिर रिपीट कर लगा कि पत परमात्मा तू साडी रखी, गुरमुख भी रखदा है। भाई साहब ने एक बचन क्या बड़ा सोहना, वो कहंदे ने जदों तुसीं देखो असीं कहना भारी चीज पानी च डुब जांदी, कहने जिन्नी भारी चीज डुबेगी, बंदा डुबदा है, पत्थर डुबदा है, लोहा डुबदा है, भारियां चीजां डुबदियां ना, पर क्विंटलां दे हिसाब नाल भारी लकड़ क्यों नहीं डुबदी? भारी तां भी है। एक पासे तुसीं कंडे ते 10 क्विंटल दा मोछा, मोछा ते आपां जे समझने ना सारे, ਉਹ ਤੁਸੀਂ पानी सट दिओ दरिया चो डुबेगा? क्यों नहीं डुबदा? है तां भारा तोल के लिआंदा। भाई साहब कहंदे ने वेखो गुरु किवें पर्दे ढकदा है। वो कहंदे ने पानी जदों ओहदे ते लकड़ तरदी है वो डोबदा नहीं। ते भाई गुरदास साहब बड़े गहरे जांदे आ, वो कहंदे आ पानी तू पत्थर सट्टिया डोब देना, लोहा सट्टिया डोब देना, आ एडी वड्डी लकड़ां तेरे ते क्विंटलां दे हिसाब नाल तरदियां पईयां ने, इन्हां नूं क्यों नहीं डोबदा? ਉਹ पानी कहता है इन्हों मैं पालिया बूंद बूंद दे के। लोहा डुब सकता, पत्थर डुब सकता है, पर इनू मैं डुबन नहीं कदी देना, क्योंकि मैं आपा दिता है, जिन्हों मैं पालिया हो मैं पत ढक के उन्होंने कदी डुबन नहीं देता। अगली गल भाई साहब कहते हैं पानी तेनू पता तेरा विरोधी ये बैठा है, क्योंकि पानी ते अग दा समेल किते, कहता पालिया तू है, पर यह लकड़ अग नाल भरी पई है, तेरा विरोधी तत्त इहदे च एक चिंगाड़ी लगी, इहदे विचों भांबड़ निकलने ने,
पानी कहंदा मैनू पता तो उदन ते सी जिदन दा जम्मिया, पर मैं उदन दी पड़दे पाई जांदा। मैनू पता इहदे च अग है, मैनू मैं जानना, पर फिर भी मैं पड़दे पाए। वो कहंदा अगली गल दस, लकड़ नाल जदों लोहा लग जांदा, लकड़ दे जहाज बनदे ने, किश्ती बनदी है, इहदे च पत्थर ला दिंदे ने, लोहा ला दिंदे ने, उदों क्यों नहीं डुबदा लोहे ते पत्थर नूं? वो कहंदा जिहड़ा मेरे पाले दी संगत कर लै मैं उहनूं भी नहीं डुबण दिंदा। अगला सवाल करदे हा, ये पौड़ी है ना, पानी काठ न डुबई पालै दी लज्जै, सिर करवत चढ़ाए कै सिर चढ़िया भज्जै। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, पेटे अंदर अग रख तिस पड़दा कज्जै, लोहे जड़िए बोए था भार परै ना तज्जै। कहना भी तू पानी डोबदा नहीं लकड़ नूं, तू क्या मैं पालिया, ते चंदन भी ते लकड़ नूं क्यों डोबना? आप नूं पता होना है, जदों चंदन खरीदिया जाता है ना, जेड़ा चंदन असली होवे ओदी निशानी वो पानी च डुब जाता है, दूजी नकली नहीं डुबदा। वो कहंदा भी चंदन भी तेरा पालिया, वो भी लकड़, ओनू क्यों नहीं डोबदा? वो कहंदा चेते रखी, मैं इस करके नहीं डोबदा, मेरा पालिया किते इहदे ते दाग ना लग जाए, नकली है, मैं तां डोबना दी बाजार विच कीमत पै जाए। भाई साहब कहंदे ने पानी काठ ना डोबई पाले दी लज्जै, सिर करवत चढ़ाए कै सिर चढ़िया भज्जै, पेटे अंदर अगन रख तिस पड़दा कज्जै, लोहे जड़िए बोए था भार परै न तज्जै, अगर डोबै जान कै निर्मोलक धज्जै, गुरमुख मार्ग चलना सड खब्बे सज्जै। कहंदे ने गुरु दे रस्ते ते चल, खब्बे सज्जे नूं छड्ड दे। गुरु तेग बहादुर साहब ने इन्ने कमाल दा नुकता किया, प्रभु जी मेरी पत रख लो, ते याद रखो पत विच गुण नहीं वेखे जांदे, पत तां रखदा ही होए जिहड़ा औगणां नाल भरिया पिया, जिन्हें गुनाह नहीं कीते ओहदी पत की रुलनी। जे प्रसाद तेरे सगल छिद्र टाके। समाप्ति ते भगत सदने ने कहा मेरी पत रख, पर नाल फिर सीधी जी गल कहती, खुण जिउंदी रखी, नृप कन्या कै कारने एक भया भेख धारी, काम आरथी स्वार्थी वाकी पै सवारी। पै सवारी हरजू राख लियो पत मेरी। पै दा अर्थ इज्जत है। ये साखी दा सब नूं पता है भी एक राजे दी बेटी ने परण कीता, मैं विष्णु नाल विआह करना है। वो कहंदे ने एक पखंडी वो रूप धार बैरूपिया आ गया, उन्हें कहा मैं विष्णु, विआह हो गया, राजे ते कोई हमला कर लगा, राजा कहंदा मेरा तां जवाई विष्णु भगवान है। वो पता लग गया पखंडी, वो पखंडी ने फिर क्या, रब्बा मैं काम दे मारे ने इस्त्री दी खातर पाप कीता, पर ना तेरा वरतिया सी, अपने नां दी पैज रख लै। इहदा मतलब ये नहीं कि आपां पाप इस तरह करना, इहदा एक पक्ष है कि परमात्मा इन्ने पापी दी भी पत रखदा। नृप कन्या कै कारने एक भया भेख धारी, काम आरथी स्वार्थी वाकी पै सवारी, तब गुना कहा जगत गुरा। तब गुण कहा जगत गुरा, जो कर्म न नासै, सिंह शरण कत जाइए, जो जंबू ग्रासै, एक बूंद जल कारने चात्रिक दुख पावै, प्राण गए सागर मिले फुन काम न आवै, प्राण जो थाके थिर नहीं, कैसे बरमामू, बूढ़ मुवै नौका मिले, कहो काहे चढ़ाऊं, मैं नाही कछ हूं नाही, किछ आहे न मोरा, अवसर लज्जा राख लियो। हरजू राख लियो पत मेरी, अवसर लज्जा राख लियो, सदना जन तोरा। इसे विचार नूं मैं कल समाप्ति ते बेनती करांगा। टाइम के लिहाज नाल मैं आप जी की सेवा की है। आप संगत का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सन्मानयोग सरदार अजमेर सिंह जी खेड़ा उन्हां दा तह दिलों धन्यवादी हाँ, जिन्हां ने आप संगत के दर्शन करने वास्ते आए आ। आओ हुण अगला प्रोग्राम भाई नवनीत सिंह जी, साडे अति सन्मानयोग ज्ञानी बलदेव सिंह जी MA, उन्हां तुहाडे दर्शन करने ने। जिहड़े सज्जन जल पानी छक रहे हैं, मैं बेनती करांगा वापिस आ जाओ। जवद्दी टकसाल दे जत्था भी आ चुका है। आपां यतन करांगे 5:30 तक, 5:45 तक समाप्ति हो जाए, पर अज धुप भी निकली है, तो प्लीज़ जल पानी छक के सारे वापस आ जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। वाहिगुरू।